to have first 2 pages or 3 pages of the notes of next chapter, which is related with food production. Okay. Before to start any chapter, I used to tell you that why this chapter has been given in class 11th or in class 12th. I think for every chapter I used to tell you. Why we are going to study this chapter in class 12th? Is there any reason, particular reason? सर एक्सक्यूज मी सर Yes. सर आप बोले थे कि अल्कोहल के बारे में पढ़ाने के बाद बताएंगे कि क्यों ये क्लास 12th बता में दूंगा. दिया हुआ है. वेट अल्कोहल का बताया तो मैंने कि व्हाई इट हैज बीन गिवन इन क्लास 12th, क्योंकि जितना भी एडिक्शन का प्रॉब्लम है, द मेजर ग्रुप ऑफ सोसाइटी हु आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एडिक्शन. अंगद किसका बाल खींच रहे हो? सब वो एक ईयरबड लेके बैठी है, वही ले रहा था मैं. ओके ओके. व्हाट आई वाज टेलिंग, द मेजर ग्रुप ऑफ सोसाइटी who are directed towards addiction is teenagers. Teenagers सबसे ज़्यादा addiction की तरफ directed हैं. That's why this topic has been given in class 12th. Otherwise इस topic का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, but इसमें हमने जितना भी जाना. Everybody mute your mic. Some voice is coming. Whatever we have studied in this topic, drugs and alcohol, most of the things what we studied is the positive things of alcohol. But more than 10 to 15 times I have repeated, it is not good for our health, not good for our society. It is not good from any point of view. But then also we are studying what are the positive impacts of drugs. तो इसको इसीलिए जाना गया कि उसके फायदे तो कुछ हैं ही, but more than advantage, it is having disadvantage. At least we should know about it, because right now you people are going to be a responsible member of the society. इसलिए इसको जानना है कि कैसे हमको प्रेशर से बचना है, कैसे हमको फ्रेंड्स के कंडीशन से बचना है, कैसे फैमिली प्रेशर से बचना है, कैसे एकेडमिक प्रेशर से बचना है, इसलिए ये जाना गया. ओके. Now come to this chapter, food production. Why we are going to study this chapter? Before to study this chapter, I want to know one basic term which is very common term. What is agriculture? Akriti Upadhyay. What is agriculture? Can you define? Yes, sir. Agriculture involves the farming as well as the animal husbandry and poultry farming, beekeeping, which profits us and for the production of food, milk, dairy product, etc. That's known as agriculture. One basic confusion in our mind is that agriculture generally we means what? Rearing of या कल्टिवेटिंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. जनरली हमारे दिमाग में एक यही कंसेप्ट होता है, पेड़ पौधों को लगाना, खेती करना, यही एग्रीकल्चर है. बट दिस इज नॉट एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स बोथ थिंग्स. फर्स्ट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इज रिलेटेड विद क्रॉप प्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज विद एनिमल हस्बेंड्री. लेट मी राइट. टू बेसिक डिविजन्स ऑफ एग्रीकल्चर. In first one, we study about crop production, and in second one, we study about animal husbandry. Yes, sir. Okay, these are the two basic. I think a little bit I have to adjust camera. Agriculture and animal husbandry. Right now in this chapter, during initial few pages, we have to study about this. Afterwards, we will go to this topic also. So what is food production? What is food? Anyone can tell me what is food? Sir, yes, sir. So anything which we take to make energy. Anything which gives food, yeah, anything which we consume for getting energy is called as food. What is the reason behind, because of which this chapter we are going to study?
कोई बताओ। सर वो ह्यूमन वेलफेयर में बायोलॉजी का क्या पार्ट है? बायोलॉजी को हम कैसे ह्यूमन वेलफेयर में यूज में ला सकते हैं सर, इसीलिए यस सर। Listen, what is the complete name of chapter? Strategies for enhancement in food production. Enhancement means everybody is knowing to increase. There is a need to increase food production day by day. Daily food production को बढ़ाने की जरूरत हमें है. क्यों हमें food production को बढ़ाने की जरूरत है? Because population is increasing day by day and the cultivated area is decreasing day by day. Population बहुत तेजी से बढ़ रही है और जमीन उतनी ही तेजी से कम हो रही है. तो अगर हमने स्ट्रेटजीज नहीं लगाई to increase food production, तो definitely a day will come when there will be no land on which we can do farming. ऐसा हो सकता है, एक टाइम ऐसा आएगा जब जमीन बचेगी नहीं. देखा होगा, one very common term which we used to listen is hybrid. Hybrid variety, चाहे वो animals की बात करें या plants की बात करें, it is very common practice used nowadays कि हर कोई जो है hybrid की बात करता है. What is the need of that hybrid? क्या जरूरत है hybrid की? Sir, improve quality. Not only improve quality, the major thing is to improve quantity. First we have to increase quantity and afterwards various researches have been done to increase the quality also. ठीक है, पहली हमारी प्रायोरिटी है कि हम क्वांटिटी को बढ़ाएं ताकि सबका पेट भरे, और उसके बाद हम उसमें आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे वैरायटीज हैं जिसमें विटामिन्स बढ़ाए गए, जिसमें ऑयल्स बढ़ाए गए, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है. Right now many varieties of wheat and paddies are available which we can which we can use even in a simple flower pot. जो हम अपने घरों पे गमले लगा रहे हैं उसमें भी हम खेती कर रहे हैं. ऐसे प्लांट बना दिए गए कि एक बार हमने एक गमले में लगा दिया तो आराम से वो इतना चावल देगा कि हम 5-6 महीने 5 किलो 6 किलो एक गमले में प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. तो what I mean to say कि wait what I mean to say that after 12th when you people will pass, if by God grace you people are going to pass class 12th, I hope so, so you will get different streams to study. One is simple BSc. Most of you are directed towards NEET. Is very good. NEET की तैयारी करें, अच्छी बात है, बट सभी डॉक्टर्स तो हो नहीं जाएंगे. तो एक बहुत अच्छी ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज AG, विच इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. ठीक है. ये अच्छी इसलिए है बिकॉज डे बाय डे दिस ब्रांच विल कीप ऑन डेवलपिंग. क्यों ये डेवलप होगी? मेरे ख्याल से इतना आप सोच सकते हैं कि डे बाय डे इसमें रिसर्चेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं. इसको डेवलप होना ही होना है. अगर ह्यूमन सर्वाइवल कंटिन्यू करता है ऑन अर्थ, so definitely agriculture will keep on developing. Any doubt in this thing? Yes sir. Yes sir. Excuse me sir. May I? सर जैसे आपने बोला कि एनहांसमेंट जरूरी है, तो इसको हम फील्ड पे क्यों एनहांसमेंट कर रहे हैं? इसको तो हम अपने लैब में भी एनहांसमेंट कर सकते हैं. जैसे कि कैप्सूल्स आ गई हैं जिससे हम खा ले तो पानी पी ले रहे हैं, तो ऐसे कैप्सूल्स क्यों नहीं बना रहे कि एक कैप्सूल खा लें तो पूरे दिन का खाना का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए? वैसी कैप्सूल्स बनी है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्पाइरुलिना की कैप्सूल्स बन रही है जिससे हमारे पूरे दिन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है. बट अभी वो चीजें इतनी कम है कि इट इज नॉट विद इन द रीच ऑफ अ कॉमन पर्सन. वो सबके रेंज में या सबके रीच से बाहर है. ठीक है. हमें रिसर्च तो करनी ही है, बट ऐसी भी रिसर्च करनी है कि इट शुड बी अवेलेबल टू एवरी कॉमन पर्सन. जैसे एक मैंगो की वैरायटी है विच इज कॉल्ड एज अल्फांसो. आई डोंट थिंक राइट नाउ 20-25 whatever, I am not seeing how many people are connected. I don't think anybody have eaten that variety Alfonso. किसी ने खाया अल्फांसो आम? वो इंडियन वैरायटी है, बट उसका जो रेट है इट इज मोर देन 1000 रुपीज केजी. अगर वो सबसे सस्ता होगा तो वो 1000 रुपए किलो से भी महंगा होगा. जो माजा हम पी रहे हैं
that same mango is used for preparation of that maza fruity वगैरह में वो अल्फांसो लगाया जाता है, इसलिए वो इतना टेस्टी होता है. हाँ, जो भी ऐसे मैंगो ड्रिंक्स बन रहे हैं जो थोड़े अच्छे हैं, ठीक है. तो व्हाट आई मीन टू से कि रिसर्च तो करनी है, बट दैट रिसर्च शुड बी इन दैट वे दैट कॉमन पीपल शुड गेट बेनिफिट ऑफ दैट रिसर्च आल्सो. ओके. So why we are studying this chapter? Because after 12th we will get a new complete course that is called as BSc AG, MSc AG. इस कोर्स में जनरली स्टूडेंट्स थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं because it is related to agriculture. एग्रीकल्चर को लोग थोड़ा आउटडेटेड मानते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगले 5 साल 10 साल में एग्रीकल्चर ही होगा जो सबसे एडवांस होगा, ये मैं बता रहा हूँ. ओके. So you can easily opt for BSc AG also, those who are not interested for NEET and other courses. Any doubt? No sir. Introduction में इतना समझ में आया कि फूड प्रोडक्शन करना क्यों है, और दूसरा ये कि why this chapter has been included. Why this chapter, ये मेरा अपना लॉजिक है, जरूरी नहीं है कि जिसने चैप्टर दिया वो यही सोच के दिया, लेकिन मुझे यही लगता है कि वो इसलिए दिया क्योंकि एटलीस्ट क्लास 12th में बच्चों को जितने भी ब्रांचेस हैं, जैसे अभी एक चैप्टर शुरू होगा बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी का तुमसे दूर दूर तक अभी कोई रिलेशन नहीं है, बट आफ्टर डूइंग क्लास 12th देयर इज वन अनदर ऑप्शन दैट इज बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, तो हम बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं. ठीक है, इसलिए ये चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, आई थिंक सो. नाउ कम टू टॉपिक. एग्रीकल्चर वी हैव टोल्ड. नाउ दिस एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड इन crop and animal husbandry. Animal husbandry means keeping animals for our benefit, and crop means developing plants and different varieties of plants to obtain product as per our desire. Okay, any doubt is there? Now come to new heading of this chapter which we have studied, which we have given in notes, that is डेयरी फार्म. ये सारे डेयरी फार्म वाले को तो कोरोना ने जान ले ली सबकी. आधे लोगों ने मुर्गा खाना छोड़ दिया. आकृति, यस सर. कहीं मिल रहा है गांव में आसपास मुर्गा वगैरह? सर नहीं मिलता है आपको. अंगद जी सर. अरे अभी बनना शुरू हुआ कि नहीं घर पे? नहीं, आप ही से श्रीकरण करेंगे ना. आप जिस दिन घर आ जाए उसी दिन बनवा देंगे हमको. सना? हाँ सर, दिमाग तो खराब हो गया, ईद के दिन भी नहीं मिला था. जब से आए हैं सर, देवस्थली में सड़ रहे थे, इतने दिन से आए हैं तो कुछ अच्छा नहीं मिला खाने के लिए. मतलब पनीर से तो नफरत हो ही गई है. मतलब देवस्थली में ही अच्छा मिल रहा था. वहाँ थे तो सोचो एटलीस्ट यहाँ संडे और वेंसडे को तो मिल जाता था. वहाँ थे तो सोचते थे ना कि वाह यार घर जाएंगे तो ये खाएंगे वो खाएंगे, वो क्या पता था कि कुछ नहीं मिलेगा खाने को. वापस आ जाओ, यहाँ हॉस्टल खुला हुआ है. सीरियसली? हाँ, और क्या. चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेयरी? डेयरी मीन्स सर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क and yes sir, production of milk and milk product. Dairy generally refers to the animals which are kept for milk production. They are kept for milk production. Okay, before just go one more term I want to tell you. One another term which is used for dairy animals is milch, MILCH, which is already mentioned in notes. They are also called as milch animals. Milk. It is not important. Come to the next heading, activities in dairy farming. It is very important because different branches we have to study, like dairy farming, poultry farming, beekeeping, fish keeping. Different things we have to study in this chapter. This activities will be common in all headings. ठीक है, ये जो 4-5 एक्टिविटी हम डेयरी फार्मिंग में पढ़ेंगे
यही सारी एक्टिविटीज हम पोल्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिश फार्मिंग में भी पढ़ेंगे, बी कीपिंग में भी पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। तो अगेन एंड अगेन आई विल नॉट रिपीट इट। नोट्स में भी अगर देखेंगे तो सिर्फ ये एक बार मैंने नोट कराया है, उसके बाद नहीं नोटेड है। ओके, तो फर्स्ट one by one, right now I am telling you, you yourself will put this common practices in other farming also. Sheila? Yes sir. कोई है क्या तुम्हारे आसपास? Who is disturbing you? Yes sir, my brother. अच्छा, ठीक है, अच्छा है। लाइव क्लास का यही फायदा है कि पूरा घर एक साथ पढ़ सकता है, पापा मम्मी भाई बहन, है ना? प्रवीण? यस सर। कोई तुम्हारे यहाँ नहीं ना परेशान कर रहा है? नो सर, कोई नहीं। आदर्शिका एंड आंचल, वीडियो ऑन करो। सर मेरा तो ऑन है। ओके, हाँ अब आ रहा है। कीप योर वीडियो ऑन एवरीबॉडी। लिसन, व्हाट आर द basic activities which we have to do if we are going to practice any of the if we are going to follow any of the practices of agriculture. First is animals should be provided proper shelter. It is very easy, need not to waste time. Feeding must be carried out in scientific manner. Scientific manner में feeding होनी चाहिए। अभिषेक यादव? यस सर। कितने जानवर है घर पे? सर 4। और प्रवीण यादव? एक भी नहीं। अरे भैया कैसे यादव जी हो? नाम का यादव है सर केवल। अभिषेक, थोड़ा स्कूल खुले तो दही वही खिलाओगे ना? यस सर। सर यादव जी लोगों से एटलीस्ट बढ़िया लाल वाली दही तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सर 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 एक्सक्यूज मी सर। सर ये भैया। हाँ अभिषेक। सर ये चलो जोक से पार्ट। अभिषेक, मैंने तुम्हारा नाम इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारे यहाँ अगर एनिमल्स हैं तो शायद ये वाला पॉइंट तुम्हें पता होगा कि फीडिंग मस्ट बी कैरिड आउट इन साइंटिफिक मैनर। इसका मतलब क्या हुआ? सर उसे अच्छी तरह से भोजन और हर एक चीज का प्रोवाइड करना होगा। क्या खिलाते हो? तुम बता दो, पूरी क्लास समझ जाएगी। सर चारा। चारे के साथ हाँ, जैसे सर कपिला पशु आहार हुआ। हाँ ठीक है। और अच्छा चलो, वेट, लेट मी इंट्रोड्यूस, लेट मी टेल यू। एवरीबॉडी, सबने देखा तो होगा ही कि वन बेसिक थिंग विच वी गिव्स टू डेयरी एनिमल इज फॉडर, दैट इज भूसा। भूसा खिलाते हैं। यस सर। और भूसे के साथ कुछ ना कुछ और मिला के खिलाते हैं, जैसे चोकर मिला दिया या पशु आहार मिला दिया या घर का हमारे जो किचन का वेस्ट है उसको मिक्स कर दिया। हॉस्टल वाले जानते होंगे 2-2 डस्टबिन बनाई गई थी कि ये इसमें फेंको वो उसमें फेंको ताकि हम उसको आसानी से जानवर को खिला सकें। तो हम उसको भूसा क्यों खिला रहे हैं और दूसरा फिर ये पशु आहार या जो अलग से हम थोड़ा बहुत मिक्स करके खिला रहे हैं ये क्यों खिला रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सर मिल्क के लिए। तो क्यों नहीं सिर्फ भूसा ही खिला दिए या क्यों नहीं सिर्फ उसको पशु आहार ही खिला दिए? सर फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ। सर हाँ sir, it's unbalanced diet for that animal now sir. No, it is not related with balancing quality of milk. Quality of milk. listen, what is the basic भूसा को भूसा क्यों बोलते हैं? भूसा मीन्स होता क्या है, कोई बताएगा? दीक्षा सर nothing, वेस्ट। फिर हम वो क्यों खिला रहे हैं भाई जब वो कुछ नहीं है? तो बोलते हैं ऐसा कि दिमाग में भूसा भर गया है क्या? क्यों खिला रहे हैं उसको? जब वो अभी आधे कह रहे हो कि सर उससे मिल्क हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर भूसा क्यों खिला रहे हैं जब हम ये जानते हैं कि इट इज नथिंग, इट इज सिंपली अ वेस्ट? एनीबॉडी? डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए। फिर से बोलो। डाइजेस्टिव सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए नहीं। एनिमल्स को हम लिसन, एनिमल्स को हम क्यों ये दो अलग अलग चीजें देते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट इज फॉडर विच वी गिव टू एनिमल्स, वो उनका पेट भरा रहे इसलिए हम देते हैं, इसीलिए भूसा ज्यादा अमाउंट में देते हैं क्योंकि उनके स्टमक की कैपेसिटी क्या है, थोड़ी बड़ी है। तो इसलिए हम बेसिक जो चीज उसमें मिक्स कर रहे हैं दैट इज फॉडर। अलोंग विद द फॉडर वी मिक्स
some amount of different types of materials available in market or at our homes. That things are responsible for increased milk production. Got it? एक चीज हम दे रहे हैं उसको ताकि उसका पेट भरा रहे, और दूसरी चीजें हम उसको दे रहे हैं ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन या उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे. एनी डाउट? ठीक है. इसके लिए दो टर्म्स यूज होते हैं कहीं छोटे क्लास में. यू पीपल हैव स्टडीड. इफ एनिमल फूड की हम बात करें तो इट विजिबल? यस. इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज roughage and another is कंसंट्रेट. एनिमल के फूड में दो बेसिक चीजें हैं, रफेज और कंसंट्रेट. रफेज नाम से ही क्लियर है कि दिस थिंग हैज गॉट नो और वेरी लिटिल इफेक्ट on the body of animal, or this thing has very little effect with the milk production. That is, example of roughage is simply fodder which we give, and concentrates are the various substance which are given for the body requirement of that animal. Any doubt is there? ठीक है. तो अभी जो पॉइंट वी आर डिस्कसिंग, दैट फीडिंग मस्ट बी कैरिड आउट इन साइंटिफिक मैनर. अगर हमने उसको रफेज नहीं दिया और हमने ये सोचा कि दूध बहुत ज्यादा लेना है निक्की, तो हमने उसमें मिक्स कर दिया बस कपिला पशु आहार ही एक बोरी खिला दिया कि जो 5 लीटर दूध देती है वो तो 10 लीटर देने लगेगी, तो क्या होगा? What will happen? Definitely the digestive system of animal will be disturbed. Okay? इसलिए हम किसी भी जानवर को, हम अपने भी अगर खाना खा रहे हैं तो in our plate we are using different items, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी सलाद पापड़ अचार, देश का 10-12 चीजें रख के खाते हैं. वो क्यों खा रहे हैं संजना? इतना सारा खाने की क्या जरूरत है? आराम से एक थाली चावल लीजिए, वही खा लीजिए. एक में चावल, एक में दाल रोटी सब्जी. What is the need? To fulfill the requirement of other nutrients. Because different things contain different nutrients. That's why we are mixing everything in our food. The same way we are using for animals also. Mute your mics, students. Sound is coming. Next is proper cleanliness. It is clear. Need not to waste time. Another is regular vaccination. Animals जिनके घर पे होंगे वो जानते होंगे. अगर गाय भैंस नहीं, अगर एक कुत्ता भी हमने रखा है तो फॉर दैट डॉग ऑल्सो वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम. है ऐसा? ताकि दे शुड बी सेफ फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. एनी डाउट इज देयर? नो सर. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. दिस फॉर डेयरी there are some examples have been given in your NCERT book. I have not mentioned any example in notes. Okay, why? But I am telling it because it is important from examination point of view. In examination they used to ask which are the high milk yielding variety of India, high milk variety of milk yielding variety of abroad countries. हमारे यहाँ जो common है that is जर्सी, साहिवाल, है ना, ये कॉमन वेराइटीज हैं मिल्क यील्डिंग. इनका नाम थोड़ा एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेंगे, इसको जान लेंगे और नोट कर लेंगे कहीं. एनी डाउट? शुड आई स्टार्ट नेक्स्ट? सर एक लाइन है. हाँ बोलो. एक लाइन है, घी फ्रॉम काउ फेड ऑन एन abundant घी green fodder is more yellow than when we fed on dry weight. इसका मतलब? रिपीट इट अगेन. Ghee from cow fed on an abundant green fodder. Yes, sir. Ghee from cow fed on an abundant green fodder is more yellow than when fed on dry food. ठीक है. जो घी है, हाँ, लेट मी टेल यू, घी जो हम खा रहे हैं, अगर घी हमने कहीं से खरीदा, अभिषेक बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर. अभिषेक, कौन से कलर का घी ज्यादा अच्छा होगा, सफेद या पीला? येलो. हल्का येलो. ठीक है. वो घी हल्का येलो कब होगा? अगर हम उसको नेचुरल फूड्स दे रहे हैं.
तो जो घी का नेचुरल कलर है वो दिखाई देगा। अगर हमने नेचुरल फूड देना कम कर दिया तो घी का जो नेचुरल कलर है वो नहीं दिखता है। ठीक है, मार्केट में बेचने के लिए जो घी वगैरह आते हैं उसीलिए उसमें थोड़ा बहुत येलो कलर भी मिला देते हैं कि लोग यही समझे कि प्योर है। एनी हाउ इम्प्योर तो खाना ही खाना है। चलिए नेक्स्ट कम टू पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री मीन्स सर बर्ड्स फॉर फूड। ठीक है, पोल्ट्री वर्ड मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या है। पोल्ट्री मीन्स हम ये समझते हैं कि मुर्गा मुर्गी को पालना। पोल्ट्री डजंट ओनली इन्वॉल्व्स hen and other things. If we are keeping any type of bird for our economical benefit, that is included under poultry. जैसे बहुत सारे जगह पे देखा होगा लोग बतख पालते हैं। अगर हमने कहीं कौवा पाल रखा है, किसी ने मोर पाल रखा है अपने फायदे के लिए, तो that all things are included under poultry. Any doubt is there? No sir. No sir. ठीक है? Yes sir. हाँ आस सर अगर कोई पिजन को पाल रहा है, हाँ वो भी उसके पोल्ट्री है। मीट के लिए, हाँ वो पोल्ट्री कहलाए। बिल्कुल, कोई भी बर्ड्स अगर हम पाल रहे हैं तो इट इज इंक्लूडेड अंडर पोल्ट्री। बर्ड के लिए अलग सेक्शन ही है पोल्ट्री। ओके सर, लेकिन उसका मकसद ये होना चाहिए कि हम खाना ले या अंडा ले, यही ना सर दोनों में से कोई एक। यस सर, ये भी तो होना चाहिए ना। फायदे क्या है सर? मतलब कि रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उससे कोई फूड एक्सट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, ये भी तो होना चाहिए पोल्ट्री में। अब तोता पाल लेंगे तो वो पोल्ट्री नहीं होगा भाई। सर लेकिन अगर उस तोता को खाने के लिए पाले तो? तोता खाया नहीं जाता है सर। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जो खाते हैं। अब कोई खा ले उसकी बात अलग, खाने वाले आदमी खा जाए। सर कुत्ता पालते हैं। यस, उससे भी तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिले, वो भी तो पोल्ट्री में आता है। कौन? कुत्ता सर। कुत्ता पोल्ट्री में कैसे आएगा? पोल्ट्री मतलब पोल्ट्री बर्ड्स में नहीं है। आता है। यस सर, जैसे पैरट से हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसको जो है, जैसे कुत्ते को पालने को हमें एनिमल्स का जो अलग ब्रांच है वो एनिमल हस्बेंड्री हो गया। लेकिन इस एनिमल हस्बेंड्री में जब हम पढ़ेंगे तो वी विल नॉट स्टडी अबाउट डॉग कीपिंग। क्यों? क्योंकि हम उसको अपने किसी इकोनॉमिक फायदे के लिए नहीं पाल रहे हैं, हम उसको अपने इकोनॉमिक घाटे के लिए पाल रहे हैं। जिसके पास पैसा ज्यादा है वो कुत्ता पाल लेगा। सिक्योरिटी पर्पस में तो कुत्ते को यूज करते हैं। अरे सिक्योरिटी कुत्ता क्या करेगा जी? आदमी अपनी सिक्योरिटी नहीं करेगा तो कुत्ते के बस का है। लेकिन ऐसा होता तो है ना। अरे यार कोई चोर आएगा, एक लेग पीस लेके आ गया मुर्गा का और एक जगह रख देगा तो कुत्ते का काम तो निपट गया उसी में, तो गई सिक्योरिटी। यही तो अंतर होती है इंसान और कुत्ते में। कोई अंतर नहीं है। कभी किसी के घर कुत्ता बंधा हो, वहां कहीं घुसना हो तो बस एक लेग पीस लेके जाओ। कुत्ता इसीलिए नाम ही दिया गया, कुत्ता कुत्ता ही है। चलो सर, ये टर्की क्या होता है? एक वैरायटी है। किस चीज की? बर्ड की वैरायटी है। और इसके बगल में भी कुछ है सर, गीज। हाँ, वो भी बर्ड की वैरायटी है। ठीक है। अगर किसी को बर्ड्स की वैरायटी देखनी होगी तो लेट दिस लॉकडाउन ओवर। फिफना में एक रेस्टोरेंट है, एक राजू ढाबा है, ये जानती होगी, बक्सर वाले जानते होंगे। सर जानते हैं। सर जानते हैं। राजू तो फायदा था सर। हाँ, राजू ढाबे से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे मींस बक्सर की तरफ, तो एक और ढाबा है, कृष्णा ढाबा करके या कुछ है। वहां पर मोर देन 10 टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर ऑलवेज अवेलेबल। वो सिर्फ नॉनवेज ही है। वहाँ की खास बात ये है कि वो पहले से बना के नहीं रखता। उसके यहाँ बहुत सारे तीतर, बटेर, मुर्गा, मुर्गी, बतख, बहुत सारी चिड़िया पहले से वो रखा हुआ है। आप जाइए, अपने सामने कौन सी चिड़िया खानी है उसको खा लीजिए। ठीक है। लॉकडाउन ओवर होता है तो जाके वहाँ देख सकते हैं कि कितने तरीके की बर्ड्स को रखा जाता है खाने के लिए। ओके अंजलि? यस सर। व्हाट अबाउट यू? कभी खाया है कोई बर्ड? नहीं सर, आई एम वेजिटेरियन। बायो के स्टूडेंट हो के वेजिटेरियन होंगे तो यार कैसे बायोलॉजी पढ़ेंगे? अगेन एंड अगेन आई यूज्ड टू रिपीट। ठीक है, वेजिटेरियन रहो, एक बार खा के तो देख लो, पता तो चले कि कैसा मसल फाइबर होता है, कैसा बोन मैरो होता है। पर कोई खिलाने वाला ही नहीं है।
कितना मजा भी आता है सर। अच्छा आकृति, लेट द स्कूल ओपन, मैं मंगाता हूँ, खिलाता हूँ, डोंट वरी। हम लोग का भी उपवास तोड़ने का कुछ जुगाड़ कीजिएगा। हाँ सर, 6 महीने से। चलिए पोल्ट्री पे आ जाइए। पोल्ट्री मीन्स इंपॉर्टेंट मैंने जो बता दिया कि इट इज सिंपली डोमेस्टिकेटिंग ऑफ बर्ड्स फॉर अवर इकोनॉमिक यूज। ओके, नेक्स्ट में पोल्ट्री के इंपॉर्टेंस में एक पॉइंट है कि द मेन एडवांटेज ऑफ पोल्ट्री इज दैट इट इज इजी टू कीप बर्ड्स, दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, they breed continuously, less space is required and fast return within 6 months. डेयरी और पोल्ट्री में यही अंतर है। अगर हम अपने आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करेंगे तो वी विल हार्डली सी एनी डेयरी एनीवेयर। हम बड़ी डेयरी नहीं देखेंगे, कहीं हो तो अलग बात है, बहुत रेयर है, बट इन एवरी विलेज वी कैन सी 2-3 पोल्ट्री फार्म्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट वी हैव मेंशन्ड इन आवर नोट्स। बस इसको थोड़ा कनेक्ट करने की जरूरत है। कम स्पेस चाहिए, थोड़े पैसे में ओपन हो जाएगा, रिस्क कम है। एक गाय अगर मर गई तो 25-30 हजार का नुकसान होगा, एक मुर्गा मुर्गी मर जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसको ले जाके मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू प्रीफर पोल्ट्री इन प्लेस ऑफ डेयरी। ओके, अब पोल्ट्री में, हाँ यस, फिर हम ये क्यों नहीं देखते कि अगर हम एक गाय पालें तो हमें उतना वो इनकम हो जाएगा जितना कि हमको 100 मुर्गियों को पालना पड़ेगा। कोई जानवर है घर पे? नहीं, घर के सामने बहुत सारी गाय हैं सर, 10-12 गाय हैं। घर के सामने अगर गाय है ना तो उस 10-12 गाय में कम से कम 10-12 लोग इन्वॉल्व होते होंगे, तब वो दूध देने लायक हैं। सर केवल 2 लोग हैं सर। 2 लोग तुम्हें दिखाई देते होंगे, 2 लोग 10 गाय को पाल ही नहीं सकते हैं सर। वो 2 ही लोग हैं जो पालते हैं, पाल ही नहीं सकते हैं। अगर अभिषेक है या जिसके घर जानवर हो उसको देख लो कि उसके मम्मी पापा जो भी है, जैसे टाइम मिलता है वो उस एनिमल को देखते हैं, उसकी केयर करते हैं। ठीक है, देवस्थली में डेयरी है तो आधी देवस्थली का स्टाफ जो है वो डेयरी में लगा हुआ है। एटलीस्ट वी आर हैविंग 7-8 परमानेंट एम्प्लॉइज। आफ्टरवर्ड्स who is getting time, they used to visit that dairy। ठीक है, तो डेयरी फार्म में इट इन्वॉल्व्स lot of hard labor, many hands are required, and in poultry farming nothing is required and it is nearly risk free। रिस्क इसमें भी तब है जब बर्ड्स की कोई डिजीज आती है तो इसमें भी रिस्क होता है, बट 2-4 चिड़िया मर जाएंगी तो कम नुकसान होगा, लेकिन 2-4 गाय मर गई तो बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए डेयरी फार्मिंग की तरफ लोग कम अट्रैक्टेड हैं। ओके, नाउ डेयरी फार्मिंग इसमें दिया हुआ है फास्ट सर। हाँ सर, इसमें दिया हुआ है फास्ट रिटर्न विद इन 6 मंथ्स। सर इसका मतलब ये हुआ कि एक मुर्गे की जो लाइफ साइकिल है, अगर आज एक मुर्गे का बच्चा पैदा होता है तो 1-1.5 महीने में वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो मार्केट में बिक जाता है। मतलब क्या है कि 6 महीने तक जाते जाते एनी हाउ दैट विल बी सोल्ड इन द मार्केट, तो उससे जो रिटर्न हमें यानी जो पैसे मिलने थे वो मिल जाते हैं। डेयरी फार्मिंग का एक और डिसएडवांटेज क्या है कि एनिमल्स जो हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में नहीं आते हैं। वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक दूध हमें देंगे, उसके बाद 3-4 महीने लैक्टेशन पीरियड नहीं होगा, तो जिस टाइम नहीं होगा उस टाइम भी हमें उन्हें खाना तो खिलाना ही पड़ेगा। ओके, दिस थिंग्स आर नॉट problematic in poultry farming. Students, now session is going to over from tomorrow I am not having class. Afterwards we will start beekeeping in dairy, in poultry. One more thing I have to tell you, on the next session you remind me कि सर आपने कुछ बोला था बताने को, एक और चीज रह गई है जो नोट्स में नहीं है, I will tell you. Okay, चलिए, take care everybody. Thank you sir. Okay, thank you. Thank you sir.